हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। आज का ये इंटरव्यू हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट 2023 का मोहम्मद सुलेमान, जिनका मेरिट नंबर 16 है। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, मैं काफ़ी सिलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू आप वॉच करना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डिफरेंट लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ से आप जाके उनको विज़िट कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। तो जानते हैं आज के हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मोहम्मद सुलेमान, जिनका मेरिट नंबर 16 है, हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेते हैं कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सुलेमान जी। मोहम्मद सुलेमान, हमारे साथ अपना इंटरव्यू शेयर कीजिएगा। Assalamu alaikum. I am here Muhammad Salman. I belong to Tehsil Rainalakot district of Kwara. I am selected as lecturer chemistry in 2023. I got 16 slot in the merit list by securing 126.6 marks. As interview experience is concerned, overall it was good. I briefly discuss with you the panel position and my talk with panel. My interview was held in Lahore on 20 December 2022. When I entered the room, I asked salam to them, but they were busy in some discussion about fog and smoke. I took my position on the chair. There was two subject specialists and one member PSC in the center. Chairman asked question. PPSC member asked, you did your BS in 2015, what are you doing after BS? I comprehensively discussed the background with all the working after BS. Here, I caught that my MPhil was in organic chemistry, which was good to attract the attention of subject specialists towards my specialization area. Then chairman asked, convince us to have beard. I confidently answered this question and chairman also contributed in this answer, and I gave positive response to the member. Then he asked, you are from Okada, why is it famous? I answered briefly. Then first subject specialist asked, compare acidity of benzoic acid and parabenzoic acid. I answered confidently. Then he asked, what are enantiomer and diastereomers? I replied confidently. What are conditions for chirality? I replied it confidently. Then he asked, differentiate between ethanol and 2-propanol. I give its answer confidently. Then he asked about chemistry of ring test. Then why second group divided into two parts in basic radical. After that, second subject specialist also asked some question, which was what is chromyl chloride test, why group 2 and 4 give precipitates with H2S, and how will you differentiate them. Here I said, I have no idea about it, sir. I will study about that. He said, okay, study about KSP. I said, okay, sir, thank you. Then he asked, how will you differentiate glucose and fructose and how will they react with Benedict solution? I answered confidently. Then PSC again asked the questions, which are, what are sources of carbon dioxide emissions? I replied 4 sources, but he said one, there is an other source. I asked, it's not in my mind. He said human. I answered in yes and explained this source also and said thanks to member. Then he asked where carbon dioxide goes in atmosphere. I replied, why pressure cooker is used, what is relation between V directly proportional to P? I said, sir, V is directly proportional to P. Yes, I replied it. What is micro?
What is its acronym? What is Sehat card? How much amount is given in Sehat card? How long it is valid? I'm not sure about time duration, sir. Then he said, okay, you can go. I said, thank you, sir. Then I leave the room. Okay, thank you. After my final result, I got 66 marks in interview, and overall it becomes 126.6. ये थी जी मोहम्मद सुलेमान, जिन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू इनका रहा। और अब मैं आपके साथ इनकी डीएमसी शेयर करता हूँ। ये मोहम्मद सुलेमान जो कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, और इनका इंटरव्यू लाहौर में कंडक्ट हुआ और इनका मेरिट नंबर 16 रहा, और इन्होंने इंटरव्यू में 66 स्कोर्स ऑब्टेन किए, और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दिस इज़ द डीएमसी ऑफ मोहम्मद सुलेमान, जिन्होंने टेस्ट में 58.5 स्कोर्स ऑब्टेन किए, एंड इन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन 31.41 स्कोर्स काउंटेड, एंड इन द रिटन टेस्ट स्कोर्स इन्होंने ऑब्टेन किए 29.25 स्कोर्स, और इंटरव्यू में 66, और ओवरऑल इनका जो मेरिट रहा ओपन मेरिट में से, ओपन सीट में से 16 इनका जो है ना वो मेरिट नंबर रहा। तो अब हम जानते हैं कि इनसे किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे गए। चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट कैंडिडेट से, आर यू बिलोंग टू उकाड़ा, क्या आप उकाड़ा से बिलोंग करते हैं, ये पूछा गया। एंड देन पूछा गया कि वाई उकाड़ा इज़ फेमस, उकाड़ा फेमस क्यों है। उकाड़ा बेसिकली जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है एक वर्ड से जिसका नाम है ओकान, और ओकान का मतलब है कि ग्रीन ट्री जिनके नीडल्स लाइक लीव्स होते हैं उनको कहा जाता है। उकाड़ा में काफ़ी सारे ट्रीज़ हैं, तो इसकी वजह से भी ये एक फेमस है, और इसके अलावा ये विजिटिंग प्लेसेस के हवाले से भी, विजिटर्स के लिए भी ये काफ़ी जो है ना वो फेमस है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, कन्विंस अस टू हैव बियर्ड, उन्होंने कहा कि जी हमें आप कन्विंस करें कि हम दाढ़ी रख लें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया, कंपेयर दी एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एंड पैरा बेंजोइक एसिड। देखें यहाँ वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो नाइट्रो बेंजोइक एसिड के केस में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, एंड नाइट्रो ग्रुप इज़ दी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, ये जो बेंजोइक एसिड है उसका COH ग्रुप है। बेंजोइक एसिड अगर स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ आपको, COOH, एंड इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, और ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये लेस पोलर हो जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल दैट्स वेरी इजी, तो बहुत इजी हो जाता है, जिस वजह से इसका जो एसिडिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू दी बेंजोइक एसिड। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर दी एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरोमर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टीरियो केमिस्ट्री के। देखिए अगर हम डिफरेंस करें एनेंटियोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स का, तो जो एनेंटियोमर्स होते हैं ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि जिनका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, और इनका मिरर इमेज होता है, और दूसरा इनका जो नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, एक ये डिफरेंस है। और जबकि डायस्टेरोमर्स की बात करें तो ये इनका मिरर इमेज नहीं होता, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, एक ये डिफरेंस भी आपके नोट कर लें। और इसके अलावा जो एनेंटियोमर्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, बट डायस्टेरोमर्स दे मे और मे नॉट ऑप्टिकल एक्टिव। इसके अलावा एनेंटियोमर्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड है ये दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एनेंटियोमर, और इसकी अगर हम बात करें तो टार्टारिक एसिड जो होता है ये डायस्टेरोमर्स की एग्जांपल है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कैरलिटी। कैरलिटी के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की कैरलिटी के लिए टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। एक तो उनका इमेज जो होता है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, एंड सेकंड जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि देयर शुड बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और उनका जो इमेज होना चाहिए वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो देन वो जो कंपाउंड होगा वो कायरल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, रिंग टेस्ट की केमिस्ट्री क्या है। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन के रिंग टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली ये यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई द नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन को NO3 1 इनको अब जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, और इसमें सिंपल फेरस सल्फेट यूज़ करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो फेरस सल्फेट और नाइट्रिक ऑक्साइड का एक कम्प्लेक्स बनता है, और जिसका कलर होता है एक ब्राउन रिंग टाइप का, एक ब्राउन रिंग बनता है टेस्ट ट्यूब में, और इसका कलर जो होता है वो ब्राउन टाइप होता है। तो ये टेस्ट यूज़ होता है सिंपली रिंग टेस्ट। देन क्वेश्चन पूछा गया, वाई सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें जो सेकंड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स आर डिवाइडेड, इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ KSP वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू की बेस पे इनको सेकंड ग्रुप को डिवाइड किया गया, सेकंड A में,
सेकंड ए एंड सेकंड बी में डिवाइड किया गया। अगर हम बात करें सेकंड ए की, तो इसमें कीटाइंस आ जाते हैं सेकंड ए में, वो कैडमियम आइन है, मरकरी आइन है, लेड आइन है, ये सेकंड ए का पार्ट है। और ये क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि इनके जो वो आइंस जिनके प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल होते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि इनकी अगर हम बात करें, ये जो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं कैडमियम, मरकरी और लेड आइन, इनके जो प्रेसिपिटेट्स हैं दीज आर द इनसॉल्युबल, तो इनको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया। और वो कीटाइन जिनके प्रेसिपिटेट्स आर सॉल्युबल, लाइक आर्सेनिक आइन है, AS3+ है, एंटीमनी है और टिन है, तो इनके जो प्रेसिपिटेट्स हैं दीज आर दी सॉल्युबल, सो इनको सेकंड बी की कैटेगरी में रख दिया गया। तो ये इसकी लॉजिक है। देन क्वेश्चन पूछा गया सेकंड स्पेशलिस्ट की तरफ से, जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ये क्लोराइड आयन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं, उसका सॉल्ट लेते हैं, देन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो क्रोमाइल क्लोराइड जो होते हैं ये ऑरेंज ब्राउन फ्यूम्स क्रिएट होते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड होता है। देन पूछा गया ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 बेसिक रेडिकल गिव द पीपीटी विद हाइड्रोजन सल्फाइड, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, तो आप इनको किस तरह जो है ना वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4 जो बेसिक रेडिकल्स है H2S के केस में, तो ये इनके जो ग्रुप रिएजेंट हैं वो डिफरेंट हैं। जो ग्रुप 2 है इसमें हम यूज़ करते हैं एसिडिक कंडीशन देते हैं, जबकि ग्रुप 4 में हम इसकी बेसिक कंडीशन देते हैं। इस वजह से जो है ना हम फिर इनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इनको भी आप अच्छे तरीके से देख लें। द टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेलिविनोव टेस्ट यूज होता है, सेलिविनोव टेस्ट यूज होता है टू डिस्टिंग्विश दी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो एट दी एंड चेयरमैन के क्वेश्चन पूछा गया सोर्सेज ऑफ CO2 एमिशन, CO2 की एमिशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं। वोल्केनो इरप्शंस हैं, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, इसका सब बन सकती हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जहाँ बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रहा है तो वहाँ भी CO2 की प्रोडक्शन हो रही होती है। देन पूछा गया वेयर CO2 गोज टू एटमॉस्फेयर, ये क्वेश्चन पूछा गया।